આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ની શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જોરે. મનથી પણ કોઈ જીવનો ગુરુ વિચારે ના હો જોરે. મનથી પણ કોઈ જીવનો વિચારે ના હો જોરે. સામાની ઉપકારિક બુદ્ધિ અહિંસક ચિત્ત મન હો જોરે. સામાને ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિંતન હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જોરે. વાણીથી શીતલ માધુરી બેલાડે તે મોટો રે. વાણીથી શીતલ માધુરી બેલાડે ના ઉટોરે. લોકોની આપે તેવા કાયાથી ચૂકજો શોરે. લોકોને સુખ આપે તેવા કાયાથી ચૂકજો શોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જોરે. લક્ષ્મી ગમની તે ગંગામાં મેલ બનારું પુનિયો રે. લક્ષ્મી ગમને તે ગંગાર બેલનારો પુનિયો રે. પુણ્યોપાજક સત્સંગ માર્ગે કરછી ધનની દોજો રે. પુણ્યોપાજક સત્સંગ માર્ગે કરજે ધને હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જોરે. હું જાતિ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ જોતો હો જોરે. હું જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છો પ્રયોગ હો જોરે. માનવતાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર નો ખોરે. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર નો કોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હો જોરે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નવ કલમ બોલીએ.
ऑल्टरनेट करो दोनों सिस्टर. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદન એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વતન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબે એવી સાદવાદ વાણી, સાદવાદ વતન અને સાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશ साधु साध्वी के आचार्य अवनवाद, अपराध, अविनय ना करने की परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યે અભાવ તિરસ્કાર ના કિયા જાય, ના કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા ના બોલી જાય, ના બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુચિ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો સ્ત્રી પુરુષ અગરના પુરુષ ગમે તે લિંગધારી હોય સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ या विचार संबंधी दोषों ना किया जाए, ना करवाया जाए કે કરતા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણો ના કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસે ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તત્વ મૃત્યુ પામેનાલો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ના કિયા જાય, ના કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિ ના અનુદાય અવનવાદ, અવિનય हे दादा भगवान, મને સતત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. दीपकांत जी. श्रीमत बुलाइए. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. नमो पितृगाय. नमो वित्रागाय, नमो वरिहंताणं. नमो નમો अरिहंताणं, અરિહંતાનમ, नमो सिद्धाणं. नमो सद्दानं, સિદ્ધાણમ, नमो आयरीयाणं. नमो નમો આયરિયાનમ, नमो वज्रायाणं. नमो નમો वत्सानं, વત્સાયાનમ, नमो लोयसवसाहुणं. नमो लोवे લોય सवसाहुनं, સવસાહુનમ, ऐसो पंचनमुक्कारो. ऐसो એસો पंचनमुक्कारो, પંચનમુકારો, सौवपावप्रणाशनो. सौवपावनाशनं, સનો मंगलाणं च सर्वेषां. मङ्गलानां च सर्वेषां, સવેસેમ, परमं हवै मंगलम्. परमं हवै મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते ભગવતે वासुदेवाय, વાસુદેવાય, ओम नमः शिवाय. ॐ नमः शिवाय. શિવાય. जय सच्चिदानंद. जय જય सच्चिदानंद. સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. ओके मोनिका. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं,
ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी। जय जीवन सच्चिदानंद। बराबर से उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की आज्ञा सुनो और उन्हें कभी भी अंका से जवाब ना दूं, ऐसी परम शक्ति आप। जय सच्चिदानंद। दक्ष हे राजा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को ढूंढने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी मुझे परम शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान, हमने आपके बच्चे हम मैं है आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के है सच्चे, दिल के दिल है के सच्चे, सच्चे, भी है कच्चे, दिल भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन, आपको वेकेशन है कि किंडरगार्टन चलता है? किंडरगार्टन चलता है। चलता है। अरे वाह, हिंदी बोलती है। अभी तो आ जाएंगे। तो एवरीडे जाना पड़ता है? દરરોજના જવાનું થાય છે? નહીં થતું, કેટલા દિવસ જવાનું થાય છે? થોડા દિવસ છે. ક્યારે? સોમવાર બુધવાર કેટલા દિવસ જવાનું થાય છે? શુક્રવાર, હા? સોમવાર, બુધવાર, શુક્રવાર જવાનું. Okay. 3 days Alternate, in the week. alternate days. No, સોમવાર, બુધવાર, શુક્રવાર. 3 days. Okay. Very good. તો આજ નતું જવાનું? હા, રજા છે આજે? હા. હા? આજે તો વેનસડે છે, બુધવાર છે. હવે જવાનું. હવે જવાનું. ઓ હજી વાર છે તમારે. હું ભૂલી ગયો, તમારે 9 વાગે છે હજી. ઓકે, હજી 8 જ થાય છે તમારે. ઓકે 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 ઓકે. તો દિવ્યાબેન, આર યુ હેપી? હા, આર યુ હેપી? હા. ઓકે, વેરી ગુડ. વાય? કેમ હેપી છો તમે? કે હમણાં સ્પ્રિંગ ચાલે છે. ઓકે. બીજું? બસ એટલું જ છે. શું છે બીજું? નથી. અક્ષય કાકા શું કહે છે? બીજું કઈ નહીં, બસ એટલું જ છે. પેલું શું હતું? મને બરાબર સંભળાણું નહીં. સ્પ્રિંગ ચાલે છે. શું ચાલે છે? સ્પ્રિંગ सीजन. ओ स्प्रिंग सीजन, फ्लावर्स जोवा मजा। स्प्रिंग सीजन। आप फ्लावर देखते हैं? हाँ, कौन सा फ्लावर है आप बाद में बताना हमको, आपका घर के आसपास। ओके, कल बताना। कल तो छुट्टी है ना, कल बताना कि आपके आसपास फ्लावर्स कौन सा है। ओके। ये मोनिका दीदी तो बहुत नोटी है, वो खेत में जाके आती है तो भी फोटो लेके नहीं आती है। क्या करेगा, कुछ हो, किसी को पढ़ने का नहीं है, पढ़ाने का नहीं है, क्या करेगा दादा। ओके दक्ष। हाँ. दादा सेपरेशन प्रेयर देगा। क्या बोला? सेपरेशन प्रेयर। Separate.
हाँ वही बोला ने दक्ष हाँ हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। करिश्मा જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય છે ઓકે વેરી ગુડ તો આપણે અમને ટ્રાય કરીએ દિવ્યાબેન ને આવડે છે આ દિવ્યાબેન બોલો પપ્પા હેલ્પ કરશે ઓકે તો ડેડી બોલાવે છે. हे હે शुद्धात्मा દાદા ભગવાન બોલો हे दादा भगवान, ઓકે આપણે શ્રેયા દીદી હેલ્પ કરશે શ્રેયા દીદી હેલ્પ કરો हे शुद्धात्मा दादा भगवान, शुद्धात्मा दादा भगवान, छो બોલો તમે રિપીટ. तब रियल छो, प्रिया जुदी छे. दिव्या दिव्या जुटी छे. દિવ્યા હે જુદી શુદ્ધાત્મા. છે. શ્રેયા તારે દિવ્યા બોલવાનું ઓકે हे Okay, शुद्धात्मा दादा, शुद्धात्मा दादा भगवान, छो ના કપાઈ ગયો અવાજ. રિપીટ કરો એ શ્રેયા તારું કપાઈ જાય છે તમે रियल छो. હા छो, दिव्या रिलेटिव छे. दादा भगवान, शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે પરમાનન્ટ છો. छो. અને દિવ્યા કેવી છે હેલ્પ શ્રેયા દિવ્યા ટેમ્પરરી છે. दिव्या टेम्पररी छे. વેરી ગુડ જય ओके कल श्रेया आपका होमवर्क तैयार है कि नहीं है હા થેન્ક યુ દિવ્યા. बोलो हाँ होमवर्क ये था कि मुझको रिसर्च करना था हांगकांग के बारे में. तो वहाँ वहाँ के ओशन, हांगकांग is surrounded by the South China Sea on all sides except north. और स्पेशलिटीज उनका, उनकी फूड, कॉफी शॉप और स्टीम्ड बंस उनके फूड में स्पेशलिटी. और उनकी नेटिव लैंग्वेज चाइनीज है. करेंसी में हांगकांग डॉलर करेंसी यूज करते हैं. और कल्चर इज अ मिक्स ऑफ चाइनीज एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस. very good and Indonesia is surrounded by कौन सा ओशन है इंडोनेशिया वो होमवर्क था ना किसी को मालूम है हाँ. श्रेया नहीं मालूम है दादा इंडियन, हाँ दादा इंडियन ओशन, यस वेरी गुड और पैसिफिक, नो पैसिफिक तो बहुत दूर है ओके कल कल का होमवर्क है श्रेया के और दूसरा आपको सुविनियर बताने का था ना इंडोनेशिया का हाँ वो फूई को दिया है, उनको चाहिए चाहिए था तो फिर आज किसको दिया मेरे फूई आए थे घर पे तो फिर उनको चाहिए था. तो फोन को तो बोला मैंने- फोटो करके
फोटो करके भेजना हमको, तो कल दिखाएगा सबको। ओके, और दूसरा क्या था, तीसरा होमवर्क? इतना दिन, 9 दिन कैसा क्या खाया? दाल भात शाक रोटी खाया क्या नहीं? हाँ, खाया था। किधर वो मिलता है उधर? वो एरिया में मुझको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाती थी, तो फिर एवरी डे? हाँ, ओ, सुबह शाम? ब्रेकफास्ट होटल पे और फिर लंच और डिनर का। ओह, वेरी गुड। ओके, ब्रेकफास्ट में तो इंडोनेशिया ट्रॉपिकल कंट्री है, कौन सा नया फ्रूट्स आपने खाया? मस्क मेलन खाया था और हाँ? वाटर मस्क मेलन और वाटरमेलन ही खाया था। दूसरा कोई था ही नहीं टेबल पे? पाइनएप्पल नहीं था? नहीं, पापा किधर ने। किधर गए मम्मी किधर? मम्मी को भी क्विज कर, मम्मी है घर पे? हाँ, उसको बुलाओ, उसको भी क्विज करेगा। दिव्या, ये श्रेया दीदी बाली इंडोनेशिया में वेकेशन में गई थी। ओके, तो हम सब क्विज करते हैं, क्या देखा क्या नहीं देखा। बहुत कुछ नहीं देखा, अच्छा। जैसे सारे दिन आंख पे बंद होती थी और घूमते थे। ओके ओके ओके, तो एक एक ओके, दूसरा क्या? एनीवे, और इंडोनेशिया का कल्चर कौन सा है? कोई मालूम नहीं ए, है। ओके, इंडोनेशिया का अब सब आइलैंड्स है, उसमें बाली है, वो दैट्स ओनली हिंदुइज्म इन देयर, दूसरा सब मुस्लिम के हैं। भले हम तो जकार्ता जाते थे ना, इसलिए हम बाली भी घूम के आते थे। एनीवे, ओके, चलो अभी दूसरा क्या करेगा? दूसरा किसी का होमवर्क था? नहीं था। ओके, तो अभी हम केशव दादा, ये इन लोग सब वेकेशन में क्या क्या नॉन स्टडी का स्टडी किया या ऑब्जर्व किया, उसकी बात चल रही थी। तो उन लोग को तो बहुत जिज्ञासा नहीं होती है। ये मोनिका खेत में जाके 10 वेजिटेबल्स का नाम दिया, तो एक एक भी फोटो नहीं है, क्या करेगा? तो ओके, पायल नेक्स्ट मासी। टाइम। हाँ, पायल मासी। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। ओके, सुबह सुबह होटल में कौन सा फ्रूट्स था? ये श्रेया ने तो एक ही कोने में देखा था, 2 ही फ्रूट देखा है। हाँ, वहाँ पे मतलब लिमिटेड वो लोग फूड देते थे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। सो वाटरमेलन, पपाया एंड मस्क मेलन, बस उतने 3 ही फ्रूट्स देते थे। ओ, दैट्स ऑल। ओके या ओके, हम जाते थे तो 10 टाइप्स, 15 टाइप्स का फ्रूट्स होते थे। हाँ, फ्रूट्स वहाँ पे बहुत ही अच्छे मिलते थे। बाहर हम लोग देखे तो ऑरेंजेस, एंड देन वहाँ का जो फेमस वो था, वो कोकोनट वाटर बहुत ही वहाँ पे अच्छा था। नॉट इन अपार्ट फ्रॉम फ्रूट में, मतलब कोकोनट वाटर वहाँ पे इतना बड़ा साइज का था, तो कोकोनट वाटर वहाँ पे बेस्ट स्पेशलिटी है। अच्छा, और फ्रूट्स तो मिल जाते थे, बनाना, ऑरेंजेस और वो सब तो मिल जाते नहीं, थे। और तो सेम होता है, आपको ट्रॉपिकल हाँ ट्रॉपिकल फ्रूट्स करने का है। एनीवे, तो वाटरमेलन आप एवरीडे पीते थे? हाँ, हम लोग डेली ब्रेकफास्ट में वाटरमेलन और मस्क में वो हम लोग फ्रूट प्लेट आती थी तो हम खा लेते थे। उधर तोड़ते थे और फ्रेश देते थे वाटर? हाँ हाँ हाँ।
अच्छा, बार बार कभी पिया बार वाटरमेलन ट्रिप में गए तब? नहीं, हाँ? नहीं बाहर तो नहीं। तो आप ट्रिप में जाते लंच, थे? हाँ जाते थे। हम थोड़ा ये कुछ भी ऐसे सॉलिड फूड मिलता था, राइस या वैसे, तो वो खा लेते थे नहीं, क्योंकि पर मॉर्निंग में जा। श्रेया तो बोला है खाली एक ही जगह के कहीं म्यूजियम में, दैट्स ऑल। 9 दिन में खाली म्यूजियम में, सारा 9 दिन म्यूजियम में आप ठहरे थे? नहीं, हम लोग एक दिन म्यूजियम था, फिर वहाँ का कल्चर बाटिक पेंटिंग था, तो बाटिक म्यूजियम पूरा एक्सप्लोर किया था कि वो लोग बाटिक वर्क कैसे करते थे, तो वो वहां पे देखा था। फिर गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी वो लोग कैसे बनाते थे, तो वो हम लोग ने देखा था। फिर हम लोग फिर उसी कंटिन्यू पार्ट में मंकी फॉरेस्ट गए थे। सो मंकी फॉरेस्ट भी बहुत ही वहां पे अच्छा था, बहुत ग्रीनरी थी, और मंकीज का भी एक अलग ही रहने का था फॉरेस्ट में। तो वहाँ वो हम लोग ने देखा। ओके, वेरी गुड। और दूसरा फिर कुछ याद आए तो बताना हो। और आप बीच तो उधर तो बहुत पास में होगा ना, बीच तो? हाँ, बीच थोड़ा लंबा था लेकिन हम लोग गए थे बीच, बीच पे भी वेरी गुड। वहां पे श्रेया, गए थे। श्रेया, हम्म। ये मम्मी इतना बताया तो आप क्यों नहीं बता सकते किधर किधर चल दी? हाँ? इसने इसने तो वो स्नोरकेलिंग भी किया था, या वो देखो, अंडर वाटर क्या क्या या उसने स्नो सब स्नो एक्सप्लोर भी किया था। फिशेस है, कोरल, मतलब वो भी टर्टल्स, सब उसने लाइव देखा था। हाँ, वेरी स्नॉर्कलिंग ओ बोलते हैं उसके, स्नॉर्कलिंग। स्नोर्कलिंग। वो भी हमने आपको नहीं बताया उन लोग। श्रेया ने। श्रेया, इसने तो बहुत अच्छी तरीके से सब देखा था, बहुत अच्छा उसने किया था, ऐसे और लगता सब नहीं आपने फ्रेंड। देखा था, उसने नहीं देखा था। मैं तो कर ही नहीं पाई थी, इसने तो स्विमिंग सीखा था, इसलिए इसने तो बहुत अच्छे से किया। तो हमको सब कुछ बताया तो नहीं? हाँ, ओके। थैंक यू पायल मासी। जय देखो बच सच्चिदानंद। नाउ, मोनिका, हाँ। करिश्मा, दाक्ष, तक से आप मालूम पड़ा कि व्हेन यू गो आउट, ओके, कल बताया था दीपक दादा ने कि हम पैसा खर्च के जाता है तो उसका फायदा कर लेने आते। So this is, see how she explained, श्रेया। हाँ, क्यों ऐसा नहीं आता है आपको? आता है। Now write an essay on this one paper, one page essay. राइट, Whatever your mama said, ओके। तो अभी अभी you vacation है तो कर सकेगी। राइट राइट राइट, तो सब मम्मी के साथ बैठ के It, अच्छी तरह से लिखाओ। और दिस रिमाइंड्स मी कि दीपक दादा, अभी स्कूल चालू होगा तो अभी स्टोरी टेलिंग, एवरीबॉडी विल हैव टू स्टोरी टेलिंग। यू आर वेरी बैड इन ऑब्जर्विंग इन ऑल दैट, ओके? सो हमको याद कराना मोनिका कि वी विल डू हाँ। स्टोरी टेलिंग, ओके? क्योंकि यू हैव टू हैव डिटेल इंफॉर्मेशन ना। हाँ, हाँ। storytelling, it could be related to your visit to some place also. It's say if राइट। you visited your uncle's place, auntie place, brother's place, garden गए, वहां का भी आप बता सकते हो। और स्टोरी टेलिंग में तो आपका हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री तो नहीं है, जिस हिस्ट्री पढ़ते हैं वो स्टोरी नहीं बना है ना, इन सकते। लोगों को हिस्ट्री होता है, नहीं नहीं, मोनिका तो नहीं है ना। हिस्ट्री। मोनिका अभी just नहीं ना, passed. स्टिल अभी अभी है। No, only four subjects she has. That's it. या ना। Yeah, yeah. Okay, दिव्या, आपको भी जो किंडरगार्टन में जो स्टोरी टेलिंग करने का है ना, इधर भी करना पड़ेगा, ओके? वेरी गुड, वेरी गुड। सो कुछ भी हो सकता है, साइंस में भी वो करता है, ओके? इफ यू स्टडी
on Newton's third law of motion. You can story who was Newton, how he did it. जो पढ़ते हो अभी स्टोरी टेलिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा आपका। ये brain has to open out in seeing, watching, learning, and then also कि आप क्या पढ़ते हैं उसमें कैसे स्टोरी बना सकते हैं, वो करेगा ना। ओके, then you learn the subject and एग्जाम के पहले भी रिवीजन नहीं करना भाई, क्योंकि वो स्टोरी तो याद आती जाती है। ओके, स्टोरी कम्स ऑटोमेटिकली। You ठीक है ना? remember. और लिखना पेपर में doesn't matter even if it is 15 lines. ओके, या अभी ये याद करना पड़ेगा हमको कि वी हैव टू डू स्टोरी टेलिंग। ओके, तो अभी तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। ओके, दादा, उन लोगों को कोई क्वेश्चन है आपको? वेकेशन में मोनिका खेत में गई थी, करिश्मा खेत में गई थी, दक्ष शिविर में और खेत में गए थे, हिताक्षी बा नवीन दादा का सत्संग में गए थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि बाहर निकलने से क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन होता है, और ऑब्जर्वेशन करने से क्या होता है, वो प्रैक्टिकली हमको दिखाई देता है। सीइंग इज बिलीविंग। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या होता है। कोई हमको बताए, इंस्टेड ऑफ हम खुद अपनी आंखों से देखें, तो देखने से क्या होता है कि हमको हमारा विजन और क्लियर होता है, हमारा माइंड क्लियर होता है, हमारा माइंड का डेवलपमेंट होता है। तो जब भी बाहर जाना निकलना चाहिए, तो इवन दादा भगवान भी जब बाहर निकलते थे तो पूरा ऑब्जर्वेशन करते थे। हमसे भी पूछते थे कि आपने क्या देखा, क्या देखा। उसमें से पता चलता है कि हाउ मच यू आर ऑब्जर्विंग। वेन एवर यू गो आउट, आपका एक एक पल बहुत कीमती होता है, और एक एक पल इतना कीमती होता है। आप बाहर निकले, पैसा खर्चा किया, तो उसमें से क्या लर्न किया, क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, वो तो हम आके उस जमाने में तो आके पूरी स्टोरी लिखते थे नोटबुक में। और फिर जैसे ही लिखने बैठते हैं तो पूरा विजन इतना क्लियर होता है कि हर एक चीज हमारी आंखों के सामने आती है। वर्बली से जब भी लिखने बैठो तो एक एक फोटो गिरता है, तो फोटो गिरने से लिखने से इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है कि हमको ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। हम तो जब भी बाहर जाते थे, निकलते थे, फिर आके वापस उसका पूरा ऐसे बनाते थे कि हमने क्या लिखा। और फिर हमको स्कूल टीचर्स लेके जाते थे और एग्जामिनेशन में वो आता था तो हम पूरा का पूरा पेजेस भर डालते थे। तो सीइंग इज बिलीविंग, ऑब्जर्वेशन करने से हर एक चीज हमारे माइंड में क्लियर होती है। और हमको लिखने से और क्या फायदा होता है कि लिखने से आप जो जो भी मोमेंट्स भूल जाते हैं ना, वो लिखते समय सब याद आ जाते हैं। तो लिखने से इतना बड़ा फायदा होता है। तो जब भी आप बाहर जाओ तो आके पूरा लिखने का, वो पूरा एक एक ऑब्जर्वेशन आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। बरोबर है? हाँ। ओके, सो करिश्मा, मामी के साथ बैठ के हो, आप भी लिखो। मोनिका, आप भी लिखो। श्रेया को तो दे दिया। दिव्या, आपको स्टोरी टेलिंग जब होता है तब बताना। दक्ष, आप शिविर के बारे में लिखो। ओके, हाँ। हिताक्षी बा, आप ये प्लांट के बारे में देखो। क्या बोलते हैं हिताक्षी बा, क्या बोल रहे हैं हमको? यू शुड राइट इन इंग्लिश, हमको तकलीफ होता है। बोलो। हाँ, मैं ये कह रहे थे कि वैक्सीन स्टार्ट हुआ उससे पहले मैं मेरे मौसी के फार्म पर गए थे, जब महेश आनंद परेशानी से आए थे, तब मेरे मौसी के खेत में गए थे सुबह से शाम। अच्छा, तो अब अभी बताते हैं, अभी बताते ये हैं। बोला नहीं, कब आए थे उन लोग? वो वैसे अप्रैल में आए थे, अप्रैल के एंडिंग में तो आपका मासी या का अप्रैल खेत। के मिडल में आए। ओके, मासी का कल बताना, मासी का खेत में क्या देखा, क्या उगता है। हाँ, चलो, ये सब खेत वाले एक ही केशवदाद, एक ही
इधर लड़की है वो खेत में नहीं जाती कि क्या करेगा श्रेया को, किसको उधर किधर शिप करेगा श्रेया को। उसने कंट्री लाइफ भी नहीं देखा है। और नहीं कल मोनिका कल हाँ बताना कंट्री लाइफ कैसा है। आपने कितना दिन कंट्री लाइफ में रहा था? मैंने 20 days रही थी। तो टुमारो योर स्टोरी टेलिंग ऑन कंट्री लाइफ। हाँ ओके, सुबह कितना बजे? 4 बजे उठ के बर्ड्स सुनते थे कि नहीं? हाँ सुबह डोंट अपने आप अलार्म बजता। अभी मत बताओ। हाँ कल कल आपका स्टोरी देखे, अभी देखता है कि आप पायल मासी जैसा है कि नहीं स्टोरी टेलिंग। हाँ वेरी गुड। अभी अभी आता है सब। तो अभी केशवदा आपने अच्छा बताया स्टोरी टेलिंग। और आपने दूसरा केशवदा ने क्या बोला स्टोरी टेलिंग में क्या होता है? नहीं, वो उसमें ऑब्जर्वेशन होता है ना, तो स्टोरी टेलिंग लिखने से क्या होता है कि हर एक चीज आंखों के सामने आ जाती है। लिखने में बहुत बड़ी ताकत है। तो हर एक चीज जो जो भी लिखने लिखने बैठते हैं तो कोई भी चीज मिस नहीं हो जाती है, सब एक एक करके आंखों के सामने आती जाती है। तो लिखना बहुत अच्छा होता है। और लिखने से क्या होता है कि हमारा विजन भी क्लियर होता जाता है, हमारा माइंड क्लियर होता है। वैसे ऐसे रिकलेक्ट करना पड़ता है आंख बंद करके। लिखने से क्या, हर एक चीज एक बार लिखना शुरू किया तो लाइन में वन बाय हर एक चीज आंखों के सामने आ जाती है। लिखने में बहुत बड़ी शक्ति है। वेरी गुड। तो सब लिखने का बस ऐसे नो 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 ऐसे श्रेया की जैसा नहीं करने का। कुछ याद ही नहीं आता है बोलने जब टाइम मिलता है। यू टू राइट इट डाउन। और केशवदास ने बहुत अच्छा 3 शब्द बोला, किसको याद है? एक सेंटेंस में 3 शब्द। एस से स्टार्ट होता है। ई ई ING। अभी सब वेकेशन में है क्या मोनिका? हाँ SEEING। seeing and observation बाद में क्या बोला? सीइंग। Is और ओ माय गॉड, ये अक्षय का आपको तुम्हारा याद है क्या बोला? इनको एक एग्जाम्पल दूंगा तो शायद याद रह जाएगा। हम जर्मनी गए थे, तो जर्मनी में हम मशीन लेने गए थे। तो हमने बहुत स्टडी किया था कि भाई ऐसा मशीन होता है, ऐसा होता है, ये ऑटोमेशन ऐसा चलता है, वैसा चलता है। तो हमने उनको बोला कि आई वांट टू बाय दिस मशीन। तो उन्होंने क्या बोला कि आपने तो मेरी मशीन देखी नहीं है। तो मैं बोला, मैंने आपका पूरा कैटलॉग ये वो सब पढ़ा है, मेरे को सब आपका इंडिया में आया था, तो अभी मैंने डिसाइड किया कि आपकी मशीन। बोला हम ऐसा मशीन देते ही नहीं है। उन्होंने क्या बोला, हम ऐसा मशीन देते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मशीन देखने आना पड़ेगा, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। नहीं तो आप, मैं कितना भी कुछ बोलूंगा ना मेरी मशीन ये करती है वो करती है, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपको विश्वास भी नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है क्या। तो ये स्लोगन मैंने वहां पर सीखा जर्मनी में। तो उन्होंने उन्होंने एक ही चीज बोला, सीइंग इज बिलीविंग। नहीं तो तुम खाली बात करते हो वो छोड़ दो, जब आप देखोगे तो फिर आपको पूरा फेथ हो जाएगा, फिर आपको बिलीव होएगा कि मैं क्या भी बोलता हूँ वो सही है। वेरी तो गुड। ये बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली थी जब मैं बहुत छोटा था उस जमाने में। तो हम गए थे सब मशीनें खरीदने जर्मनी। अभी बोलो क्या बोला? S is what? कंप्लीट सेंटेंस कौन बोलेगा? seeing is believing सब बोलो, believing, एक साथ ही बोलो सब। seeing is दिव्या believing दिव्या का seeing साउंड नहीं is आया। believing. और ये बात आए, एक मिनट दीपक दादा, ये एक ये अक्षय काका हाँ एक दिन छोटा पंप लेके आना, हम हाँ हम हम भी देखेंगे सिंग इज बिलीविंग है कि नहीं। तो छोटा पंप और 2 साइड पे समथिंग
so you can हाँ process water. We can show हाँ pump working and water. Okay. ओके हाँ आपको छोटा होता है ना, पंप तो होता है ना हाँ छोटा। हाँ हाँ तो ओके, एक दिन बताना कब आते हैं आप, आपको टाइम कब है, तो वो भी सीइंग और बिलीविंग करेगा। केशव ने बताया मशीन, तो हमको याद आया कि आपका पंप को देखेगा। और दीपक दादा हाँ ये लर्निंग का एक प्रिंसिपल है, एज यू सी सो यू लर्न। लिख दो, एज यू सी सो यू लर्न। एंड सीइंग इज बिलीविंग, वही भी साथ ज्वाइन करो। यस। ये एवरीडे रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना प्रार्थना हो जाएगा। ओके, एवरीबॉडी मस्ट, एवरीबॉडी नो। ओके चलो। और दादा ने एक और भी छोटी सी बात बताई थी कि बोलो। सत्संग में क्यों आने का है। तो सत्संग में लोगों को आप देखेंगे तो लोगों को देखकर आप सीख पाओगे और सीख जाओगे, और खास करके दादा को देखेंगे तो आप सीख लोगे कैसे हमें रहना होता है। यही सच्चिदानंद। जय सच- ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय ઓકે કેશવાનંદજી, આપણે હવે એક જ મિનિટ